Hello students, I hope you all are fit and fine. We listening some words: lightning, thunderstorms, earthquakes, drought, floods, hurricanes, landslides, tsunamis, volcanoes. We will start some natural destructive phenomena. Some natural destructive phenomena are cyclone, lightning, earthquakes. Lighting is a strike of bright light and sound caused by electric discharge between clouds and earth or between different clouds. Earthquake is a sudden shaking and trembling of the earth caused by a disturbance deep inside in the earth crust. These pictures are show lightning and earthquake cause a lot of damage of human life and properties. A natural phenomenon is a non-artificial event, the physical sense, and therefore not produced by human, although it may affect humans. Example: bacteria, hanging, natural disaster, death. Common example of natural phenomena included volcanoes, eruptions, weather, and decay. Most natural phenomena such as rain are relatively harmless so far as humans are concerned. There are various types of natural phenomena like meteorological phenomena and geological phenomena. Meteorological phenomena, weather including phenomena, hurricanes, thunderstorms, tornadoes, and geological phenomena including volcanic activities and earthquakes. Now topic lighting. You may see the spark on an electric pole when wire become loose. The phenomenon is quite common when wind is blowing and sucking the wires. You may have also seen spark when a plug in loose in its socket. Lighting is also an electric spark but on a huge scale. An ancient time, the people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lighting, and through that the worth of God was visiting them. Now, of course, we understand that lighting is caused by the accumulation of charge in the clouds. The sparks that the Greeks knew about. The ancient Greeks knew as earlier 600 BC that when amber is a kind of resin, was rubbed with fur, it attracted light object in such a hair. You might have seen that when you take off wooden and polyester clothes, your hair stand on end. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, American scientist, show that lighting and the spark from your clothes. Now, charging by rubbing. Some objects can charge by rubbing with other objects. When objects are rubbed, they attract light objects like pieces of paper. This process is called charging by friction. यानी सबसे पहले हम एक प्लास्टिक का रिफिल लेते हैं, स्केल या फिर इसके अलावा जो कॉम्ब होता है उसको किसी जो ड्राई हेयर होता है उसके ऊपर बार बार हम क्या करते हैं, रफ करेंगे. कॉम्ब को हम क्या करेंगे, बार बार रफ करेंगे. बार बार क्या करेंगे, रफ करेंगे. बार बार रफ करने के बाद जैसे ही कोई भी पेपर होता है या फिर इसके अलावा जो हेयर्स होते हैं उनके पास जैसे ही ले जाते हैं तो एक इसके द्वारा, कॉम्ब के द्वारा जो चार्ज है उसका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो शो होता है. द चार्ज acquired by rubbing are static charge. They do not move. When charge move, it is electric current. Electric current is motion of charges through a conductor. Now, types of charges and their interaction. So, two types of charges: positive charge and negative charge. Two charged body may attract and repel each other. Like similar charges repel each other, unlike dissimilar charges attract each other. So
both positive charges are repel each other, both negative charges are repel each other, and negative and positive charge are attract each other. Like charges repel each other. सो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे. तो एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो बलून्स लेंगे. दोनों बलून्स को क्या करेंगे, दोनों को फ्रीली एयर्स के अंदर इस तरह से धागे की सहायता से इस तरह से लटका देंगे. उसके बाद में इसको जो वुलन क्लॉथ होता है, वुलन क्लॉथ को इन दोनों जो बलून्स हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, रफ करेंगे. बलून्स के ऊपर जैसे ही रफ करेंगे तो बलून्स के ऊपर चार्ज आ जाता है. अब उसके बाद क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का रिफिल लेंगे. और जो प्लास्टिक का रिफिल लेंगे उसको जो पॉलीथीन होता है उससे क्या करेंगे, रफ करेंगे. और जो ग्लास का ट्यूबलर है उसके अंदर उसको क्या कर देंगे, प्लास्टिक का जो रिफिल है उसको अंदर उसको रख देंगे. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. अब जो हमने दोनों को चार्ज किया था उसके बाद में अब हम देखेंगे कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चार्ज प्लास्टिक रिफिल है, बाय रबिंग विद ए पॉलीथीन एंड कीप इट ग्लास ट्यूबलर. चार्ज एन इन्फ्लेमेबल बलून बाय रबिंग विद ए पीस ऑफ वुलन क्लॉथ एंड ब्रिंग इट नियर द चार्जेड प्लास्टिक रिफिल. They attract each other. They attract each other. Charges acquired by different objects. A glass rod rubbed with silk get positively charged. A plastic rod rubbed with fur get negatively charged. Show the plastics and fur. The positive charge and the positive charge neither repel and positive and negative charge attract. Frictional order these materials: wool, funnel, fur, sealing wax, glass, paper, silk, hand, rubber, umber, ebonite, plastics. When any these materials are rubbed together, the one in the higher order get positive charge and the one is the lower order get negative charge. A glass rod rubbed with silk get positive charge and ebonite rod rubbed with fur get negative charge. Types of charge and their interaction. तो सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बलून्स लेंगे, उनको हैंग कर लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, दोनों बलून्स को जो वुलन क्लॉथ होता है उस क्लॉथ से क्या करेंगे, रफ कर देंगे. जैसे उसको रफ करेंगे उसके बाद में जब हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन में बताओ स्टूडेंट क्या शो होता है, A charged balloon repel a charged balloon. Why? यानी जो दोनों बलून है वो दोनों चार्ज हो जाते हैं. जब उसको वुलन क्लॉथ से रफ करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. क्यों? क्योंकि सेम चार्ज दोनों बलून्स पे कैसा चार्ज है, सेम चार्ज है. जब दोनों बलून्स पे सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ओके, नाउ रिपीट एंड अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेन का रिफिल लेंगे और दो रिफिल लेंगे और उसको पॉलीथीन के ऊपर उसको रफ करेंगे दोनों रिफिल्स को. और उसको जो ग्लास का ट्यूबलर है उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको रख देते हैं. एक रिफिल को रख देते हैं. जैसे ही दूसरा रिफिल उस ट्यूबलर के अंदर रखा हुआ जो दूसरा रिफिल है उसके पास में जैसे ही ले जाते हैं तो उसमें हमें क्या शो होता है, उसमें हम देखेंगे कि जो दोनों रिफिल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. इट इज ए कन्वेक्शन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन इट इज rubbed with silk as positive. Other kind of charge is said to be negative. It is observation that when a charged glass rod is brought near a charged plastic star rubbed with a polythene, there is attraction between two. अब है ट्रांसफर ऑफ चार्ज. जो चार्ज होता है वो किस तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है. तो सबसे पहले
टेक एन एम्प्टी जैम बोतल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो कार्डबोर्ड के पीसेज हैं, एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे जो उसके बोतल का जो माउथ है उसके माउथ के ऊपर रखने के लिए, ओके। और इसके अलावा क्या लेंगे, मेटल पेपर क्लिप लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, होल के द्वारा उसको इंसर्ट कर देते हैं। और जो उसके बाद क्या करेंगे, कट टू स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स अबाउट 4 cm इंटू 1 cm, यानी दोनों 4 cm इंटू 1 cm का साइज होना चाहिए। और दोनों को एक साथ एक पेपर क्लिप के साथ में क्या करेंगे, एक मेटल के पेपर क्लिप के साथ में क्या करेंगे, उसको लटका देते हैं। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इज perpendicular to it, charge it, refill and touch it with end of paper clip. Observation that happened. इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन जब इसमें देखेंगे तो इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप, ये फॉइल स्ट्रिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। डू दे रिफिल ईच अदर एंड अट्रैक्ट ईच अदर, नाउ टच अदर चार्जेड बॉडी विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, do foil strip behave in the same way in the cases, why they foil strip repel each other, so the aluminum foil strip receive the same charge from refill through the paper clip. Remember that metal are good conductor of electricity, the strips carrying similar charge repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में। अभी किसके थ्रू होता है, ये होता है मेटल कंडक्टर के थ्रू होता है। Now lighting conductor. A lighting conductor is a device used to protect buildings from damage due to lighting. A lighting conductor has metallic rod. A lighting conductor has metallic rod. The upper end is the pointed, and the lower end is the joined to a metal plate. Burn inside the ground. When lighting strike, the electric charge pass through the earth without causing any damage by building. Okay. Protection from lighting and thunderstorm. Open vehicle like motorbike, trucks, open cars are not safe. जब लाइटिंग और थंडरस्टॉर्म होता है तो उस समय जब हम बाहर होते हैं तो किस तरीके से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रक्स, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। जितने भी मोटर बाइक्स हैं, ओपन ट्रक्स हैं, ओपन कार्स हैं, तो वो सभी थंडरस्टॉर्म के लिए, लाइटिंग के लिए सेफ पैलेस नहीं है। ओपन फील्ड, पार्क्स, एलिवेटेड पैलेस, टॉल ट्रीज आर नॉट सेफ। जो ओपन फील्ड होता है, खेत होते हैं, पार्क्स होते हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो भी लाइटिंग के लिए सेफ नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ। जब बारिश के टाइम पे हम अम्ब्रेला साथ लेके चलते हैं तो अम्ब्रेला भी सेफ नहीं है, उस पर भी लाइटिंग हो सकती है। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्री। अगर हम फॉरेस्ट के अंदर हैं तो वहाँ पे बड़े पेड़ों की बजाय छोटे पेड़ों के नीचे हमें क्या लेना चाहिए, रहना चाहिए, ताकि हम लाइटिंग से बच सकें। इफ एन ओपन फील्ड स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, poles, metallic objects, do not lie down. Squat on the ground with hands on the knees and the head between the hands. यानी ओपन फील्ड के अंदर अगर हम हैं तो आसपास देखते हैं ट्री, पोल्स वगैरह, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, इन सब से दूर रहना चाहिए। और अगर ओपन ग्राउंड में तो हम किस तरीके से रह सकते हैं, अभी आपको एक पिक्चर के द्वारा शो करते हैं। इस तरीके से आप दोनों हाथों को इस तरीके से अपने दोनों नीज के ऊपर रख के और सर को इसके ऊपर रख के इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से पोजीशन बनाने से हमें क्या बेनिफिट्स होगा, क्योंकि जो लाइटिंग होता है वो लाइटिंग इस तरह पोजीशन की वजह से कि हमारा जो
स्पेस होता है, इसका जो लेंथ होता है हमारा वो कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से जो लाइटिंग के चांसेज हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सेफ बच सकते हैं। अब अगर हम इनसाइड घर के अंदर हैं तो किस तरीके से लाइटिंग से प्रोटेक्ट होंगे? लाइटिंग कैन स्ट्राइक इलेक्ट्रिक वायर्स, टेलीफोन्स, cords and metal pipes, so contact with these objects should be avoid। अगर लाइटिंग हो रहा है तो उस समय जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, या टेलीफोन कोड्स होते हैं, टेलीफोन की जो लाइन होती है उससे दूर रहना चाहिए, या मेटल वगैरह के जो भी पाइप्स हैं पाइप्स सबसे दूर रहना चाहिए। इट इज अ सेफर टू यूज मोबाइल एंड कॉर्डलेस फोन देन वायर्ड फोन। जो वायर्ड फोन होता है यानी जो टेलीफोन का लाइन होता है, तार वाला जो टेलीफोन होता है, उसको यूज करने की बजाय जो वायरलेस फोन होता है, जो जनरली जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो सेफ रहता है। इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस लाइक टीवी, कंप्यूटर्स etc शुड बी अनप्लग। यानी जब लाइटिंग वगैरह होती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? टीवी है, कंप्यूटर है, या जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस हमारे हाउस के अंदर होते हैं उन सबको अनप्लग कर देना चाहिए, ताकि अगर लाइटिंग हो तो वो वायर के थ्रू इन एप्लीकेशंस को डैमेज ना कर सके। बाथिंग शुड बी अवॉइड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रेन वाटर। रेन वाटर, बारिश हो रही है, लाइटिंग हो रही है, तो हमें रेन वाटर के अंदर बाथिंग करने को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। नाउ सेफ पोजिशन ड्यूरिंग लाइटिंग। नाउ earthquakes. An earthquake is a sudden shaking and troubling of the earth caused by a disturbance deep inside in the earth crust. Earthquakes cause damage to buildings, dam, bridge. It can cause landslides, floods, tsunamis. It can also cause damage to life and properties. Earthquake means भूकंप। जब भूकंप आता है तो ये एक अचानक ये होने वाली घटना है, जो हमारे अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के आपस में खिसकने से, खिसकने से, ऊपर नीचे होने से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। तो जैसे ही ये प्लेट ऊपर नीचे खिसकती हैं तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो वाटर होता है, जैसे ही प्लेट ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर की तरफ होने से जो वाटर है वो उसका लेवल भी क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो उसकी वजह से क्या आती है? सुनामी आती है। अब सुनामी आती है तो सुनामी आने की वजह से, तो सुनामी के रास्ते में जो भी ब्रिज है, जो भी सिटीज के अंदर जितने भी रोड वगैरह है, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उन सबको क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ इज प्लेट, यानी प्लेट का मूवमेंट किस तरीके से होता है? एक होता है कोलाइडली और एक होता है ब्रीसिंग पास्ट। कोलाइडली का मतलब हो गया कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, इसको बोलेंगे कोलाइडली, और ब्रेसिंग का मतलब हुआ एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, यानी आपस में जब एक दूसरे के पास में होगा तो ब्रेसिंग पास्ट हो गया, और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जब प्लेट हो जाती है उसको बोलते हैं कोलाइडिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे भूकंप का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इंडियन प्लेट के अंदर कौन कौन से सिस्मेटिक जोन्स आते हैं? एक हो गया कश्मीर है, कश्मीर हो गया, हिमालय हो गया, इसके अलावा इंडोजेनेटिक प्लेन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सम रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। ये सारे जो रीजन्स हैं वो किसकी वजह से हैं? भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिएक्टर स्केल, यानी भूकंप जो आता है उसकी तीव्रता को हम किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव, ऐसा होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, यानी अर्थक्वेक जब आता है तो उनके द्वारा जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, यानी जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। Now show the diagram. Systematic early seismograph.
ये सिस्मोग्राफ है जिसके द्वारा भूकंप को मापने का काम किया जाता है। नाउ सम डिस्ट्रक्टिव पिक्चर्स, जो भूकंप आने के बाद किस तरह से नुकसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।